Hey everyone, this is Nikita and welcome back to my channel. So today we are going to start a new chapter that is metals and non-metals from class 10th itself. And if you're new to my channel, please take a moment and subscribe to my channel and press the bell icon so every time when I put a new chemistry tutorial you get notified. So let's begin the video. So yeah, again I have divided this chapter into two parts. So in this video we will be primarily focusing on the physical and chemical properties of metals and non-metals. So let's begin. तो जो सबसे पहला टॉपिक है वी हैव टू स्टडी इज़ अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. सो आई हैव लिस्टेड इट डाउन हियर विच आई रीड एंड एक्सप्लेन यू. तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मेटल्स हैव अ शाइनिंग सरफेस कॉल्ड मेटालिक लस्टर. यानी कि जो मेटल्स होते हैं दे आर वेरी शाइनी इन नेचर विच इज़ कॉल्ड एज मेटालिक लस्टर. मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर, दे आर ऑफ hard nature. The third point says metals are malleable, that means they can be beaten into thin sheets. तो यहाँ पे एक न्यू टर्म यूज़ हुआ है which is malleable. It means कि जो metals होते हैं you can convert them into thin sheets. That's why metals are called malleable. Okay. तो फोर्थ पॉइंट क्या है, metals are ductile, that is they can be drawn into thin wires. Also metals, there's one another new term here over here which is ductile, which says कि जो metals होते हैं they can be converted or drawn into thin wires. उनको हम wires में convert कर सकते हैं. So that shows कि वो ductile होते हैं. तो उसके लिए एक specific word use करते हैं हम जिसे हम ductile कहते हैं. Okay. So the fifth point what it says is metals have high melting points. तो जो metals होते हैं most of the metals they have high melting points. तो सिक्स पॉइंट सेज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो जो मेटल्स होते हैं दे अलाउ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम वेरी ईजिली. तो इसलिए हम मेटल्स को गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. और ये जो मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, सिल्वर एंड कॉपर, दे आर वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Okay, so let's move on to the next point which says कि most of the metals have high density. तो जो maximum metals होते हैं उनकी density बहुत ज़्यादा होती है. और जो metals है when they are hit they produce a ringing sound which due to which they are called as sonorous. तो basically a new term again is used here from the physical properties of metals कि जब हम metals को hit करते हैं तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से हम उसे सोनरस टर्म से बुलाते हैं. तो मेटल्स आर सोनरस इन नेचर. सो आई हैव रिटन फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स हियर, sodium, potassium, magnesium, aluminium. So this were all about the physical properties of metals which I have listed down here, जिसमें तीन हमने important new words basically we have learned which is malleable, ductile and sonorous which I have discussed here. Okay, now let's move on to the chemical properties of metals और देखते हैं कि chemical reactions कैसे होता है metals का, how do they react with different substance and what products are formed. तो जो सबसे पहला reaction है metals का है वो है reaction with oxygen. Almost all metals combine with oxygen to form metal oxides. तो basically जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. तो जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता है वो क्या है, मेटल ऑक्साइड, जिसे हम मेटल ऑक्साइड कहते हैं. तो इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल मेटल का लेके आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन. सो आई हैव टेकन कॉपर एंड पोटेशियम. तो कॉपर का रिएक्शन ये क्या हो गया, मेटल, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से, इसे हम मेटल ऑक्साइड बोलेंगे. सो मेटल ऑक्साइड विच इज़ फॉर्म्ड हियर इज़ कॉपर ऑक्साइड विच इज़ ब्लैक इन कलर. और सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो पोटेशियम का रिएक्शन है ऑक्सीजन से विच इज़ फॉर्मिंग पोटेशियम ऑक्साइड. तो बेसिकली जब भी कोई मेटल एक मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमेशा मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है. ओके, तो अब देख लेते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड्स है ये एसिडिक होता है या बेसिक होता है. तो जो मैक्सिमम जितने मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर. तो उनका नेचर कैसा होता है, दे आर ऑफ बेसिक नेचर. बट देर आर सर्टेन मेटल्स, few metals which show both acidic and basic behavior. इसके पहले जस्ट अभी मैंने what I've said कि जो मैक्सिमम मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं. बट देर आर फ्यू एक्सेप्शंस, जो कि एल्यूमिनियम एंड जिंक, इट शोज़ बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर. मतलब कि ये एसिडिक बिहेवियर भी और बेसिक बिहेवियर यानी कि डुअल बिहेवियर शो करते हैं. तो इसे हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं विच इज़ कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. तो
तो what I have taught, I'm repeating again, कि most of the metal oxides are basic in nature, but there are two metals which I've mentioned here, aluminium and zinc. They show dual behavior, यानी कि वो acidic behavior भी show करते हैं और basic behavior भी. तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड वंस विथ एसिड, एंड सेकेंड टाइम में यहाँ पे मैंने बेस के साथ रिएक्शन लिखा हुआ है. सो लेट्स हैव अ लुक एट इट. एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से विच इज़ फॉर्मिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर. ये किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड से हो गया. सेकेंड वाला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन बेस से विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड. द बेस विच आई हैव रिटन हियर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो उसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से ये बना रहा है सोडियम एल्यूमिनेट. आई एम राइटिंग हियर द नेम ऑफ द प्रोडक्ट. दिस इज़ एल्यूमिनियम क्लोराइड. और जो जब वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है इट इज़ फॉर्मिंग सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर. सो दिस शोज कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मतलब कि वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाट इट सेज. मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट sorry I forgot to mention here few dissolved in water to form alkalis. तो बेसिकली what this says कि जो ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन कुछ जो हैं वो जो कुछ मेटल्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और जब वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं दे फॉर्म alkali. And what is alkali? Alkali is a base basically which is soluble in water. ठीक है, तो व्हाट इट सेज कि कुछ मेटल्स हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल हैं, मेटल ऑक्साइड्स जो कि सॉल्युबल है वाटर में और वो एल्कली बनाते हैं. तो दो जो मैंने यहाँ पे इक्वेशंस लिखे हुए हैं, एक फर्स्ट वाला है सोडियम का और दूसरा पोटेशियम ऑक्साइड का. तो सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ यहाँ पे एल्कली बना रहा विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सेकेंड वाला जो पोटेशियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से विच इज़ गिविंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. So this was about few metal oxides which are soluble in water to form alkali. Okay, so there are few extra important points which I have written here. Keep in mind, please have a look at it when you go through the chapter. It's extra important. So metals such as potassium and sodium are very reactive towards oxygen. तो जो metals हैं पोटेशियम एंड सोडियम दे आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन. वो ऑक्सीजन के टुवर्ड्स उनकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है. दे कैच फायर व्हेन केप्ट इन ओपन टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट फायर्स दे आर इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल. तो what this is saying कि जो पोटेशियम और सोडियम है दे आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन. तो उनको इफ़ वी कीप देम इन ओपन दे कैच फायर वेरी ईजिली. To prevent fires they are generally immersed in kerosene oil which is basically an alternative to prevent fire. Next point, magnesium, zinc, lead etc. are covered with thin layer of oxide to prevent them from further oxidation. तो basically तीन metals यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, मैग्नीशियम, जिंक और लेड. दे आर बेसिकली कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड. उनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है बेसिकली टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, ताकि उनको ऑक्सीडेशन और ना हो सके. द थर्ड पॉइंट सेज आयरन डजंट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन फ्लेम ऑफ बर्नर. तो बेसिकली आयरन व्हेन इट इज़ हीटेड तो उसका वो नहीं बर्न होता है, लेकिन जो आयरन फिलिंग्स होते हैं इफ़ इट इज़ स्प्रिंकल्ड ऑल्सो इन द फ्लेम ऑफ बर्नर तो वो फायर बहुत ईजिली कैच कर लेता है. So that was all about the extra important points. And one more point है, it's about silver and gold, कि सिल्वर और गोल्ड का कोई रिएक्शन नहीं होता ऑक्सीजन से. सिल्वर एंड गोल्ड ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता इवन एट हाई टेम्परेचर. अगर आप उसे बहुत ज़्यादा एट हाई टेम्परेचर पे भी हीट करते हो देन ऑल्सो देयर इज़ नो रिएक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. ओके, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर. पहला था ऑक्सीजन के साथ, अब दूसरा लेट्स हैव अ लुक कि मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़. तो मेटल बेसिकली वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड. और ये मेटल ऑक्साइड अगेन जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है. बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. लेकिन सारे मेटल्स क्या हैं, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते.
तो दो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एक पहला है पोटेशियम का रिएक्शन वाटर से विच इज़ फॉर्मिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है और हीट लिखा हुआ है यहाँ पे। सेकेंड सोडियम का रिएक्शन है वाटर के साथ विच इज़ गिविंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और हीट। तो ये दोनों में व्हाट वी फाइंड कॉमन कि ये दोनों में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है। इट मीन्स बोथ ऑफ द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बेसिकली दोज रिएक्शंस जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। तो ये दोनों रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है, दिस इज टर्म्ड एज एक्सोथर्मिक। ओके, जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है कैल्शियम का रिएक्शन वाटर से। तो कैल्शियम का रिएक्शन वाटर से एक्सोथर्मिक नहीं होता, मतलब बेसिकली ये लेस वायलेंट होता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इट इज़ फॉर्मिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसमें हीट रिलीज नहीं हो रहा है। हीट रिलीज किसके केस में ज़्यादा अमाउंट में हो रहा था? पोटेशियम और सोडियम के केस में। So it says also कि bubbles of hydrogen gas formed stick to surface, therefore calcium starts floating। तो बेसिकली जब कैल्शियम का रिएक्शन वाटर से होता है तो इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो हाइड्रोजन गैस जो इसमें रिलीज हो रहा है, ड्यू टू दैट इट्स बबल्स गेट स्टिक टू द सर्फेस। इस वजह से कैल्शियम जो है वो इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बबल्स। Okay, and there's one another metal which is magnesium. It says कि this point says कि magnesium only reacts with hot water. It does not react with cold water, and magnesium also starts floating। यानी कि magnesium का reaction hot water से नहीं होता, इट ओनली रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। और इस केस में जब कोल्ड वाटर के साथ इसका रिएक्शन होता है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, और जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है उसके भी बबल्स they get stick to the surface, and due to this also magnesium starts floating। एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट्स ओनली विथ स्टीम। और तीन जो ऐसे मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। और इनका इक्वेशंस देख लेते हैं, देन सी व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इट इज़ फॉर्मिंग। तो एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस इसमें भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। और आयरन का भी रिएक्शन स्टीम के साथ आयरन ऑक्साइड बना रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो दिस पॉइंट सेज कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक का रिएक्शन सिर्फ स्टीम से होता है। और यहाँ पे मैंने चार मेटल्स लिखे हुए हैं, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, PCAA। दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, नो रिएक्शन विद वाटर। इनका रिएक्शन वाटर के साथ होता ही नहीं है। 4 metals which I have written here. Okay. Then let's move on to the third reaction, which is the third chemical property of metals, reaction of metals with acid। metals का reaction acid से क्या होता है, तो क्या बनता है? तो basically metal dilute acid के साथ react करके salt बनाते हैं और hydrogen gas evolve होता है। But there's one important point to be remembered here again, which is nitric acid। जो nitric acid होता है, it is a strong oxidizing agent। तो जब भी कोई metal nitric acid के साथ react करता है तो इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या करता है, जो हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में, और खुद जो HNO3 है यानी कि नाइट्रिक एसिड है वो खुद रिड्यूस हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड्स में। बेसिकली मेटल्स का रिएक्शन अगर हो रहा है किसी डाइल्यूट एसिड के साथ तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस। लेकिन नाइट्रिक एसिड के केस में ये एक्सेप्शन है कि नाइट्रिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो H2 बनता ही नहीं है यहाँ पे। नो H2 इज़ फॉर्म्ड हियर, नो हाइड्रोजन गैस हियर इज़ फॉर्म्ड, बल्कि जो H2 है वो किस में ऑक्सीडाइज हो गया, वाटर में। ओके, so the next reaction is the next metal which we'll look here is about copper। तो dilute hydrochloric acid के साथ copper का कोई reaction नहीं होता। और NCERT में एक activity है about in which we'll compare the reactivity of several metals। so what it says कि आपको metal samples collect करने हैं except sodium and potassium। सोडियम और पोटेशियम इसलिए नहीं कलेक्ट करना है क्योंकि दे आर वेरी रिएक्टिव। पुट सैम्पल्स सेपरेटली कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन टेस्ट ट्यूब। तो बेसिकली यू हैव टू पुट सैम्पल्स सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब विच हैज़ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन इट, विच हैव रिटन हियर। सस्पेंड थर्मामीटर्स इन टेस्ट ट्यूब सो दैट बल्ब्स आर इमर्स्ड इन एसिड। और आपको इसमें
थर्मामीटर यू हैव टू सस्पेंडेड इन सच अ वे जो बल्ब्स हैं वो कम्प्लीटली इमर्स हो जा रहे हैं एसिड में, एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। तो आपको देखना है कि बबल फॉर्मेशन का रेट सबसे ज़्यादा किस में है। तो वॉट यू विल फाइंड कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स है इट विल बी फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। तो इससे हम रिएक्टिविटी ऑर्डर कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है इट्स वेरी रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। So this is the activity which is given in NCERT which you have to do, which shows the reactivity order कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा मैग्नीशियम। ओके नाउ एक जो टॉपिक है विच इज़ बेसिकली we'll read here about a liquid which is different liquid which is called as aqua regia और royal water। तो बेसिकली what is aqua regia वो देख लेते हैं। एक्वा रीजिया क्या होता है? इट इज़ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड HNO3, यानी कि HCl और HNO3 का ये मिक्सचर होता है इन द रेशियो 3:1 एंड इट इज़ यूज टू डिज़ोल्व गोल्ड और प्लैटिनम। तो बेसिकली व्हाट इट डज, इट इज़ एबल टू डिज़ोल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो इट इज़ अ हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड विच हैज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl और HNO3 इन द रेशियो 3:1, और इसे हम रॉयल वाटर के नाम से भी बोलते हैं। तो now let's move on to the fourth chemical property of metals, which is the reaction of metal with salt of other metal salts, which is also called as displacement reaction. Metal of A plus salt of B solution gives salt solution of A plus metal B. It's getting a little confused. Students may get a little confused over here. So let's understand it with the help of an example. तो यहाँ पे reaction है zinc का copper sulfate से, which gives zinc sulfate plus copper. So basically displacement reaction, I have discussed about it elaborately when I was teaching the types of chemical reactions in chemical reactions and equations. तो जो जिंक है ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो बेसिकली व्हाट इट डज, ये कॉपर को भगा देता है और ये जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर इज़ हियर थ्रोन आउट ऑफ द रिएक्शन। वैसे ही लेड का रिएक्शन कॉपर क्लोराइड से, तो अगेन दिस इज़ मोर रिएक्टिव। तो ये क्या कर रहा है, ये अगेन इट थ्रोज आउट कॉपर ऑफ द रिएक्शन बिकॉज दिस लेड इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये लेड क्लोराइड बना रहा है प्लस कॉपर। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड हाउ विल यू नो दैट अ मेटल इन अ सॉल्ट इज़ एबल टू डिस्प्लेस द अदर मेटल और नॉट? तो दैट यू हैव टू जज बाय रिएक्टिविटी सीरीज। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो पोटेशियम होता है। दिस इज़ द रिएक्टिविटी सीरीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है रिएक्टिव, और सबसे लीस्ट जो रिएक्टिव है वो है प्लैटिनम। दिस इज़ द रिएक्टिविटी सीरीज दैट विल हेल्प यू टू जज whether a given metal is able to displace the other metal in the displacement reaction. Okay, so that was all about the physical and chemical properties of metals. Now let's have a look at the physical properties and chemical properties one by one for non-metals. तो नॉन मेटल्स बेसिकली मेटल्स के जस्ट ऑपोजिट होंगे। तो हमने मेटल्स में क्या देखा था, दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल एंड नॉन मैलिएबल, यानी कि इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते या थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दे आर नॉन लस्चरस एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन ही एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है विच हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस, ए शाइनी लस्टर। अदरवाइज ऑल द नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चरस इन नेचर। दे हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन मेटल्स, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेटल्स से काफ़ी कम होता है। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट ही एक मात्र ऐसा नॉन मेटल है विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अदर देन दैट most of the non-metals are bad conductors of heat and electricity. They have low densities except डायमंड। तो डायमंड के अलावा बेसिकली इन जो जितने भी मैक्सिमम नॉन मेटल्स होते हैं इनकी जो डेंसिटी होती है काफ़ी कम होती है। एंड एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन हियर, आई फॉरगॉट टू मेंशन, सो आई हैव रिटन हियर एग्जाम्पल्स: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, कार्बन। तो बेसिकली these were all about the physical properties of non-metals. Now let's have a look at the reactions of non-metals. तो जो सबसे पहला रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटल जो है वो हमेशा एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिएक्शन कार्बन का ऑक्सीजन से विच इज़ फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, और इनका कोई रिएक्शन नहीं होता डाइल्यूट एसिड से।
and also it does not show any reaction with water because they cannot release electrons. So basically non-metals जो हैं they are not efficient enough to release electrons. तो ना तो ये dilute acid के साथ react करते हैं, ना ही ये water के साथ react करते हैं. So here comes the real chemistry. So basically chemistry is full of exceptions. That's why I think most of the students find it very difficult to read things and to understand. So basically these are the exceptions which I have listed down here, which you need to keep in your mind. The odd ones out basically, which do not follow the curve. So basically the first exception is mercury is a liquid at room temperature. So basically all the metals are solid, but mercury is the only exception which is a liquid at room temperature. Gallium and cesium have very low melting point. और ये दो जो मैंने metals लिखे हैं gallium और cesium, ये दोनों की melting point काफ़ी कम होती है. Alkali metals are soft and can be cut with a knife. और जो alkali metals होते हैं they are very soft, वो इतने soft होते हैं that they can be easily cut with a knife. तो lithium, sodium, potassium, they three can be easily cut with a knife. कार्बन इज़ अ नॉन मेटल एंड एग्जिस्ट्स इन वेरियस फॉर्म कॉल्ड एलोट्रोप्स. और जो कार्बन है वो एक नॉन मेटल है और पर ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है जिसे हम एलोट्रोप्स कहते हैं. एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन विच वील डिस्कस हियर. सो आई हैव रिटन हियर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. तो पहला जो एलोट्रोप है वो है डायमंड विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ग्रेफाइट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो एक ऐसा मात्र नॉन मेटल है जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स. और भी ये एलोट्रोप्स है बकमिन्स्टर, फुलरिंग. सो बेसिकली दीज वर ऑल द एक्सेप्शंस विच आर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी दैट यू कीप इन योर माइंड. Now let's so that was before starting on the new topic, so that was all about the physical and chemical properties of metals and non-metals, its reactions and formation of compounds. So basically how do metals and non-metals react? Let's have a look. एटम ऑफ मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायंस. तो बेसिकली जो मेटल्स के एटम होते हैं वो ईजिली इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस. एंड एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एनायंस या फिर नेगेटिव आयंस. तो बेसिकली जो मेटल्स हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन्स ईजिली छोड़ देते हैं जो कि पॉजिटिव आयंस बनाते हैं. और जो नॉन मेटल्स होते हैं they can accept electron very easily due to which they form anions called as negative ions. So oppositely charged ions attract each other and held by electrostatic forces. तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो मेटल से ये पॉजिटिव आयंस बना रहे हैं और ये जो नॉन मेटल से ये नेगेटिव आयंस बना रहे हैं, तो ये दोनों के बीच क्या, प्लस और माइनस के बीच ऑब्वियसली एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा ड्यू टू विच दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और इसी से एक न्यू कंपाउंड बनता है विच इज़ टर्म्ड एज आयनिक कंपाउंड इन विच द पॉजिटिव पार्ट इज़ फ्रॉम मेटल एंड द नेगेटिव पार्ट इज़ फ्रॉम नॉन मेटल. सो बेसिकली ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है और इससे जो कंपाउंड बनता है इसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं. कि अब देखते हैं कि ये कैसे बनता है, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, इट्स प्रॉपर्टीज़. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट इट. तो आयनिक कंपाउंड का जो सबसे पहला एग्जांपल बेसिक सा मैंने लिया हुआ है जो NCERT में भी दिया हुआ है, NaCl, सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम से पॉजिटिव पार्ट आएगा और क्लोरीन से माइनस पार्ट आएगा. तो सोडियम का मैंने यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है विच इज़ 11. तो मैंने इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किया है 2 8 1. 2 + 8 10 + 1 11. तो इससे आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. अब अगर Na अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो बेसिकली इट विल बी स्टेबल. हम कंपाउंड क्यों बना रहे हैं या बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स क्यों शेयर करते हैं या क्यों देते हैं, बेसिकली टू गेट स्टेबिलिटी. तो वैसे ही यहाँ पे अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा. वैसे इफ़ वी हैव अ लुक एट क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17. तो हम अगेन इफ़ यू डिस्ट्रीब्यूट इट इज़ 2 8 7. और अगर ये इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्ट कर लेगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा क्योंकि 2 + 8 10 + 8 18. तो बेसिकली टू अटेन स्टेबिलिटी दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड. कैसे देख लेते हैं. तो बेसिकली सोडियम सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर ये क्लोरीन को दे रहा है, अगर आप किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो बेसिकली आप लॉस में हो. तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लगाया है और क्लोरीन जो है वो गेन कर रहा है. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव. तो सोडियम हो गया पॉजिटिव, क्लोरीन हो गया नेगेटिव.
So I have written here, NaCl is held together by electrostatic force of attraction. NaCl exists as aggregates of oppositely charged ions. तो बेसिकली NaCl में सोडियम जो है वो पॉजिटिव पार्ट की कंट्रीब्यूट कर रहा है. I'll write here again. एंड जो क्लोरीन है वो नेगेटिव पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो इसमें एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हुआ which is held together by electrostatic force of attraction. So that's why NaCl is formed. एक और एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है मैग्नीशियम क्लोराइड. तो इसमें भी सबसे पहले आप क्या करना, अगर आपको कोई कंपाउंड बनाने दिया हुआ है आयनिक कंपाउंड, व्हाट यू हैव टू डू कि मैग्नीशियम और क्लोरीन अगर दो दिए कैटायन एक एनायन, तो सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर लिखना होगा एंड देन डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स. तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12. तो मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, 2 8 2 2 + 8 10 10 + 2 12. तो अगर मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा 2 8 10. और क्लोरीन की ऑब्वियसली अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो क्लोरीन को देगा. तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक ये एक क्लोरीन को देगा, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 17 से कितना में चला जाएगा 18 में. तो 18 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, स्टेबल है, इनर्ट कॉन्फिगरेशन है. तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और एक इसको. तो फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर लिया और ये 2 क्लोरीन को दिया है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 2 लिखा है. तो व्हाट इट फॉर्म्स is MgCl2, which I have written here. So it forms magnesium chloride, which is an ionic compound, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों हो गए. पॉजिटिव पार्ट इज फ्रॉम मेटल विच इज़ मैग्नीशियम एंड द नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट इज क्लोरीन. Okay, so that was all about the 2 examples. I'll make you solve more questions on formation of ionic compounds in the upcoming video. So now let's have a look at the properties of ionic compounds, which is also important. So basically ionic compounds are solids and somewhat hard due to force of attraction, generally brittle and break into pieces when pressure is applied. तो basically ionic compounds जो होते हैं they are solids and they are held together by strong forces of attraction and वो बहुत ही brittle होते हैं. So basically if pressure is applied तो वो टूट जाएंगे. It's hit, it can be broken down into pieces. They conduct electricity only in molten state as electrostatic forces are overcome due to the heat. तो बेसिकली ये जब मोल्टन फॉर्म में होते हैं तभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसके जो आयंस हैं मोल्टन फॉर्म में दे कैन ईजिली मूव और दे कैन ईजिली मूव एंड देयर इलेक्ट्रिसिटी फोर्सेज कैन बी ओवरकम ड्यू टू द हीट. Ionic compounds are soluble in water. They have high melting and boiling point as large amount of energy is required to break them. और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज दे आर हेल्ड टुगेदर वेरी स्ट्रॉन्गली बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है टू ब्रेक देम. So that was all about the physical and chemical properties of metals and non-metals, which I think concluded in the first part of the chapter. In the second part of the upcoming video we'll be talking about the extraction of metals, how to extract a particular metal from the minerals and how do you make it pure and certain methods. We'll read about that elaborately in the next video. So I hope you like the video and please show some love and support and thanks for watching.